नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है नरेशन। सो नरेशन अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। Direct and indirect speech. So first of all, we need to understand what does it mean basically. What is direct and indirect? इसका मीनिंग क्या है? Direct speech, reporting the message of the speaker in exact words as spoken by him. किसी के एक्चुअल वर्ड्स, जो उसने बोले गए हैं वो डायरेक्ट स्पीच है, और उसको जब हम इनडायरेक्ट में बोलते हैं दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। डायरेक्ट में आ गया, जैसे रामा सेड आई एम बिजी नाउ, तो रामा ने कहा क्या? आई एम बिजी नाउ। डायरेक्ट स्पीच में रामा सेड आई एम बिजी नाउ, तो डायरेक्ट वर्ड जो है उसने जो बोला है दैट इज आई एम बिजी नाउ। अब आई एम बिजी नाउ इसको हमने इनडायरेक्ट में बोलना है। अब ये कब बोले थे? ये तो पहले राम ने सेड, उसने कहा है, कह दिया है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा जब हम इनको अपनी वर्डिंग्स में हम इसको लिखते हैं, रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन और ओन वर्ड्स। हम अपनी वर्डिंग में इसको जब बोलते हैं, रामा सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन, ही वाज वेरी बिजी देन, तो एक्चुअल वर्ड्स को हम अपनी वर्डिंग में जब लिखते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। यानी किसी की डायरेक्ट स्पीच को हम अपनी वर्डिंग में लिखते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। So there are few rules for direct and indirect speech. To change a sentence of direct speech into indirect speech, there are various factors that are considered, such as reporting verb, modals, time, place, pronoun, tense, etc. We will take up all the factors one by one. हम सारे factors को one by one discuss करेंगे. So let us start. Rule number one. Direct to indirect speech reporting verb. When the reporting verb of direct speech is in past tense, then all the present tenses are changed to corresponding past tense in the indirect speech, right? When the reporting verb of direct speech की जब reporting verb, this is the reporting verb of direct speech is in past tense, then all the present tenses are changed into corresponding past tense. तो सिंपल आपने याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस is changed into past tense. Present tense is changed into past tense, right? So she said I am happy. इनडायरेक्ट में आएगा she said that she was happy, यानी इन्वर्टेड कामास को हमने किससे हटाया? दैट से हटाया। इन्वर्टेड कामास को हमने किससे हटाया? दैट से हटाया। सो इनडायरेक्ट स्पीच, she said that she was happy, right? So next आ गया, in indirect speech tenses do not change if the words used within the quotes talk of a habitual action or universal truth. In indirect speech, tenses do not change if the words used within the quotes. For example, he said, we cannot live without air.
तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम बदल नहीं सकते। तो यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल एक्शन जो है ये चेंज नहीं होगी। हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रुथ नेवर चेंज, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम एयर के बगैर नहीं रह सकते। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। सो इनडायरेक्ट में आ गया, ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हट के किससे, दैट से, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, ही सेड। अगर यहां पे दे होता, राइट, तो यहां पे वी दे में कन्वर्ट हो सकता था, राइट। सो दे सेड दे कैन नॉट लिव विदाउट एयर, तो यहां पे ही सेड, तो यू कैन यूज वी एज वेल। रूल नंबर 3, the tense of direct speech do not change if the reporting verb is in future tense or present tense. The tense of the direct speech do not change if the reporting verb, अगर reporting verb future tense में है या present tense में है, then the direct speech वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। The tenses of the direct speech do not change if the reporting verb is in future tense or present tense. For example, अब future tense में या present simple में, she says present simple, will say future, she says or she will say she is going, तो इसकी भी, इसका भी टेंस जो है चेंज नहीं होगा। जैसे she says or she will say she is going, तो वैसे का वैसा रहेगा, इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट रूल है डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, present perfect is changed into past perfect. For example, direct, I have been to Boston, comma inverted, हाँ यस, ये इन्वर्टेड कॉमास में रखो, ये डायरेक्ट स्पीच है। आई हैव बीन टू बॉस्टन, ये इन्वर्टेड कॉमास में रखा। शी टोल्ड मी या शी टोल्ड मी आई हैव बीन टू बॉस्टन। अब इसका इनडायरेक्ट आएगा, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन टू बॉस्टन। तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट, तो हैज बीन की जगह हैड बीन आ गया, राइट। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आई एम प्लेइंग द गिटार, शी एक्सप्लेन्ड, आई एम प्लेइंग द गिटार, शी एक्सप्लेन्ड। इनडायरेक्ट टेंस में आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा, शी एक्सप्लेन्ड दैट शी वाज प्लेइंग द गिटार, शी एक्सप्लेन्ड दैट शी वाज प्लेइंग द गिटार। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। He said she has finished her homework. She said that she had finished her homework. Present simple into simple past or simple present is also known as present indefinite into past indefinite. I am unwell, she said. I am unwell, she said.
she said that she was unwell. Present simple into past simple. So is I am into who is saying this? She said. किसने कहा? उसने कहा. तो I am किस में आएगा? She was. She said that she was unwell. Next rule. Direct speech to indirect speech conversion. Past tense and future tense का आ गया. Simple past changes into past perfect. Simple past यानी past indefinite is changed into past perfect. For example, she said Irwin arrived on Sunday. She said Irwin arrived on Sunday. Indirect speech में she said that Irwin had arrived on Sunday. Irwin had arrived on Sunday. So past simple में क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. और पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3. राइट. सो हैड आएगा इसके साथ. हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इरविन हैड अराइव्ड ऑन संडे. पास्ट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. सो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस was were प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस और फॉर. सो past continuous. We were playing cricket. They told me. They told me. Comma inverted comma. We were playing basket. तो उन्होंने कहा. They told. They told me that they had been playing basket. तो past continuous किसमें कन्वर्ट हो गया? Past perfect continuous में. Future changes to present conditional. She said, I will be in Scotland tomorrow. She said, उसने कहा कि मैं कल स्कॉटलैंड में होंगी. उसने कहा कि वह स्कॉटलैंड में होगी. सो इसका इनडायरेक्ट में आएगा शी सेड दैट. तो विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विल वुड में. सो शी सेड दैट शी वुड बी इन स्कॉटलैंड द नेक्स्ट डे. Future continuous changes to conditional continuous. For example, he said, I will be disposing the old computer next Tuesday. He said, I will be disposing the old computer next Tuesday. तो इसमें future continues into conditionals में जैसे he said that he would be. तो will be किसमें change हो गया? Would be. He said that he would be disposing the old computer next Tuesday. Right? Next rule, direct speech to indirect speech conversion interrogative sentences में means WH sentences. What, where, when. So यहां पे
दैट की जगह इन प्लेस ऑफ दैट क्वेश्चन वर्ड जो है वही एक ज्वाइनिंग क्लॉज का रोल प्ले करेगा। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो। आस्क्ड द बॉय, एक लड़के ने कहा आप कहां रहते हो। एक लड़के ने कहा आप कहां रहते हो। तो इसका इनडायरेक्ट में आएगा द बॉय इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायरी करी, पूछा उसने, तो यहां दैट की जगह सिंपली इंक्वायर्ड आएगा। वेयर आई लिव्ड, उसने मुझे पूछा कि मैं कहां रहता हूं, राइट। सो द बॉय इंक्वायर्ड। If a direct speech sentence begins with an auxiliary verb or helping verb, joining clause should be if or whether. अगर एक डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस बिगन होता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, जॉइनिंग क्लॉज शुड बी इफ और वेदर। तो इसमें जो जॉइनिंग क्लॉज का होगा शुड बी और वेदर आएगा। और आपने याद रखना कि शुड बी इफ, इफ और वेदर का यूज कहां कहां होता है। जब आपके पास ऑप्शन हो तब आप वेदर का यूज करोगे, जब आपके पास ऑप्शन नहीं हो तब इफ का यूज करोगे, राइट। लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल। शी सेड आई विल यू कम फॉर द पार्टी। शी सेड, उसने कहा क्या आप पार्टी में आओगे। शी आस्क्ड वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी। अब यहां पे पार्टी में आओगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आओगे कि नहीं आओगे। यू हैव चॉइस। आपके पास जब चॉइस हो तो वहां हम वेदर का यूज करेंगे, वी विल यूज वेदर। सो इफ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन देन यू हैव टू राइट इफ। तो जहां पे आपके पास ऑप्शन है आप क्या लिखोगे, वेदर। सो शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी, उसने कहा यानी उसने पूछा, यहां पे क्या किया उसने पूछा, शी आस्क्ड वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी। तो यहां पे हमारे पास चॉइस है तो हम पार्टी में जाएंगे कि नहीं। नेक्स्ट है reporting verb such as said to changes to asked or demanded. So for example, he said to me what are you wearing. He asked me what I was wearing. He asked me what I was wearing. डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन चेंजेस इन मॉडल्स। अब मॉडल में कैसे चेंज हो जाएगा, कैन कुड में मे माइट must becomes had to or would have to, would have to। Direct speech, she said she can dance, she said she can dance, she said that she could dance। इसका indirect में आएगा, यानी can किस में कन्वर्ट हो गया, could में। she said I may buy a dress, she said उसने कहा, हाँ she said I may buy a dress, उसने कहा कि मैं शायद ड्रेस खरीदूं। सो शी सेड दैट शी माइट बाई अ ड्रेस, तो इसका पास्ट क्या आ गया, मे का पास्ट माइट, इनडायरेक्ट में शी सेड दैट शी माइट बाई अ ड्रेस। सो शी माइट बाई क्यों आ गया, क्योंकि मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, रामा सेड आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट। रामा सेड आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट। Indirect, Rama said that he had to complete the assignment. So must किसमें चेंज हो गया, had to. So Rama said that he had to complete the assignment.
There are models that do not change like could, would, should, might और to. तो मॉडल्स जब ऑलरेडी पास्ट में हो, जैसे मे का पास्ट माइट, कुड का कुड ही रहेगा, कैन का कुड आएगा, विल का वुड आएगा, शेल का शुड, मे माइट, तो आर टू का आर टू ही रहेगा. सो अब ये चेंज नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई शुड क्लीन द हाउस. शी सेड आई शुड clean the house. She said that she should clean the house. She said that she should clean the house. So direct speech to indirect speech conversion, pronoun. Pronoun का conversion करोगे. He said I am in class 12th. He said I am in class 12th. So he said आएगा. He said that he was in class 12th. He said that he was in class 12th. The second person of direct speech changes as per the object of the reporting verb. For example, she says to them. Says to. तो says to tells में कन्वर्ट हो जाता है, और यानी अर्थात says to हो जाएगा tells में, said to told में, और say to tell. So she says to them, you have done your work. She tells them that they have done their work. तो ये कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में है. अगर ये प्रेजेंट सिंपल में है तो ये आगे वाला चेंज नहीं होगा, सिर्फ दैट लगेगा यहाँ पे. थर्ड पर्सन ऑफ डायरेक्ट स्पीच डजंट चेंज. फॉर एग्जाम्पल, third person, remember one more thing, third person never changes. So he says she dances well. He says that she dances well. He says that she dances well. So next rule, very important, conversion रिक्वेस्ट, कमांड, विश और एक्सक्लेमेशन का. Indirect speech is supported by some verbs like request, ordered, suggested and advised. Forbid is used for the negative sentences. Therefore, imperative mood in indirect speech changes into infinitive and in indirect. So जहां पे रिक्वेस्ट करी हो तो वहां पे रिक्वेस्टेड आएगा, ऑर्डर दिया हो ऑर्डर्ड आएगा, सजेशन दिया हो तो सजेस्टेड आएगा, और एडवाइस दिया हो तो एडवाइज्ड आएगा. राइट. फॉरबिड मना किया हो नेगेटिव में तो फॉरबिड आएगा. सो ये यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस की जगह. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू हर. शी सेड टू की जगह आना चाहिए था टोल्ड आना चाहिए था, लेकिन क्या कहा है स्टेटमेंट देखो, प्लीज कंप्लीट इट. अब वो क्या कह रहे, शी सेड टू हर, वो रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट हो गया ना. तो यहाँ पे सेड टू की जगह क्या आएगा, शी रिक्वेस्टेड हर टू कंप्लीट इट. उसने रिक्वेस्ट करी है, शी रिक्वेस्टेड हर टू कंप्लीट इट. हामिद सेड टू रमिद. हामिद ने रमिद से कहा सिट डाउन. अब यहां पे उसने ऑर्डर दिया है, रमीज सेड टू हमिद. अब नीचे बैठने के लिए कौन कह सकता है, किसी ऑर्डर भी दे सकता है ना, ये ऑर्डर वाली बात होगी. सो अब प्लीज नहीं, रिक्वेस्ट नहीं किया, यहां पे सिंपली सिट डाउन. सो हमीद ऑर्डर्ड रमीद टू सिट डाउन. In exclamatory sentences that express
grief, sorrow, happiness, applaud. Interjections are removed and sentences changed to an assertive sentences. अब यहाँ पे exclamation, ये सारे हैप्पीनेस, सॉरो, ग्रीफ, ये एक्सक्लेमेशन है, यानी इमोशंस के बारे में बात हो रही है. सो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन आएगा तो एक्सक्लेम्ड विद सारो आएगा या एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस आएगा. दोनों के साथ एक्सक्लेम्ड आएगा क्योंकि एक्सक्लेमेशन साइन है ना, तो एक्सक्लेम्ड आएगा, एक्सक्लेम्ड आएगा. शी सेड alas I am undone. I am undone. She exclaimed sadly that she was broke. Right? So break, broke या break, broken दोनों आता है. She was broke. So direct speech to indirect speech, conversion of punctuations. In indirect speech, the words usually spoken should be in inverted commas, जो हमने starting में कहा था. Quotes and always begin with a capital letter. She said, I am the best. Right? ये आपने याद रखना है. और इसमें full stop, comma, exclamation, question mark are placed inside the closing inverted commas, है ना, ये we already have done. So they asked, can we sing with you, है ना, इस तरह से. So if direct speech comes after the information about who is speaking, comma is used to introduce the speech placed before the first inverted commas, ये भी आपने याद रखना है. Then direct speech example, he shouted, shut up. So indirect speech example, thinking back, he said she didn't expect to win. Comma is used to separate the two direct speeches and no capital letter to begin the second sentence, right? So next rule, direct speech to indirect speech, change of time. In direct speeches, the words that express nearness in time or place are changed to words that express distance in indirect speech, such as, for example, now किसमें convert हो जाएगा, then में, here becomes there, ago becomes before, thus becomes so, today becomes that day, tomorrow becomes next day, this becomes that, yesterday becomes the day before, right? इधर जिधर, come go, तो ये सारे हमने ऑलमोस्ट डिस्कस किए हैं. ठीक है, तो इस तरह से इसको आप ये सारे रूल्स याद रखोगे, राइट. सो use the reporting verb such as say, said to, its incorrect tense, right? और ये सारे रूल्स, ठीक है, आप इनको रिवाइज कर लेना. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. सो आज के लिए इट्स इनफ. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर.